Good morning, all the students. In the previous module, we have discussed about Rabi crop. Means we were discussing about the cropping pattern, but in the previous module, we have discussed about the Rabi crop. Today, in this module, we will discuss about the next crop that is Kharif crop. As I told about in a Rabi crop, it is being harvested in the month of April to June. So after this June month, generally we receive a shower of rains. So the Kharif crop are grown with the onset of the monsoon in a different parts of the country, and these are harvested in a September and October. In the month of September to October, we harvest the Kharif crop, and it is being sown in the month of June. Means it will start from the June only, ठीक है? यानी जून से इसका जो है वो स्टार्ट हो जाता है खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन, because it has been written over this onset of the monsoon, or generally we receive the shower of the monsoon by the June only. So by the June, its harvesting has been started after June, and its sowing work has been started, and it has been harvested in the month of September to October. यानी सितंबर से अक्टूबर के मंथ में हम इसकी हार्वेस्ट कर सकते हैं. तो ऐसी क्रॉप्स जो इस पीरियड्स में जनरली शोइंग की जाती है. द नेम ऑफ दीज इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर पैडी. पैडी की क्रॉप्स को हम जनरली देते हैं. देखिए, मोस्ट ऑफ द क्रॉप विच नीड्स मोर वाटर इज जनरली शोन इन दिस पर्टिकुलर टाइम. जैसे मेज है, ज्वार है, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, cotton, jute, groundnut, soybean, etc. These are the basic crops that generally sown in this time periods. That's why it is known as a kharif crop. ठीक है? तो अगर कोई भी पूछता है कि what are the kharif crop, तो it is generally sown onset of the monsoon and harvested on the month of September to अक्टूबर. ठीक है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये जो है वो हार्वेस्ट कर ली जाती है. और सम एग्जांपल पैडी है, मेज है, ज्वार है. इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट वन इज सम स्टेट्स आर देयर दैट इज जनरली आइडियल फॉर ग्रोइंग द खरीफ क्रॉप्स. वो आपके मोस्ट ऑफ द नदर्न पार्ट्स एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर गुड फॉर दैट. जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल असम, वेस्ट बंगाल एंड द कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, particularly Konkan coast, along with the Uttar Pradesh and the Bihar. So these are the basic states which are ideal for growing the kharif crops. ठीक है? और the next, we will move to the next type of pattern of crop, that is Z. Z generally is a crop which is being shown in between of the harvesting period of Rabi crop and the sowing period of Kharif crop. See, in between of the Rabi and Kharif seasons, यानी रबी और खरीफ सीजन्स के बीच का जो टाइम आता है, in that particular time there is a short sessions during the summer month is known as a Z sessions. ठीक है, यानी जो आपका जब आप लोग भी जनरली harvest the Rabi crop and going to sow the Kharif crop. So this specific period is known for good for the growing of Z crops. ठीक है, और जो जैद के जनरली क्रॉप्स होते हैं जो जैद के टाइम में क्रॉपिंग की जाती है, वो कुछ एग्जांपल ये हैं. जैसे वाटरमेलन है, मस्क मिलन है, कुकुम्बर है. वेजिटेबल्स है, जनरली जो वेजिटेबल्स है वो स्पिरिट्स में ग्रो होती हैं. फॉडर्स है, शुगर केन है. और शुगर केन को आप ग्रो कर देते हैं, बट इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 years टू ग्रो. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ द पैटर्न्स ऑफ क्रॉपिंग विच इज बेसिकली डन इन इंडिया: रबी, खरीफ एंड जैद. Now next, as we know that India have a varied type of climates and the different types of the soil are present in India. So as per the soil and the temperatures and the rainfall status, we grow a variety of the crops in India. जैसे for example, a variety of the foods and non-food crops is also being grown in India. जिसमें हम लोग अगर देखते हैं तो a variety of the foods and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the various soil. देखिए, जो वेरिएशन ऑफ द सॉइल है, अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, उस सॉइल पे अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है. अकॉर्डिंग दैट पर न्यूट्रिशनल वैल्यू वी ग्रो अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स. तो वेरिएशन ऑफ द सॉइल, वेरिएशन ऑफ द क्लाइमेट्स, कि कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, कहीं पर क्लाइमेट्स का टेम्परेचर कम होता है.
एंड रेनफॉल भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कल्टीवेशन प्रैक्टिस. So in India, as we know, the different types of the geographical area exist, and the different types of geographical area generally receive a different types of the climates and the different types or the variety of the soils too. So we grow a different types of crops in a different parts of countries. Few are like जैसे हम लोग देख सकते हैं in India, rice है, wheat है, millets है, pulses है, tea, coffee, sugarcane, oil seeds, cotton, and jute. These are the basic types of the crops, or you can say the category of the crops that is generally shown in India. See, and now we will pick one by one. The first and the major crop in India, that is rice. जो पहला है major वो आपका rice है, और it is a staple food crop of the majority of the people in India. Generally, the people use that. It is most important crop, और क्या हम कह सकते हैं ये staple crop इसलिए है क्योंकि whether the person is eating vegetables or any pulses, but he or she will use all these things along with the rice or along with the wheat. ठीक है, तो इसलिए एक staple crop है कि आप चाहे vegetables यूज कर रहे हैं और you are eating any pulses, कोई भी दाल यूज कर रहे हैं या कुछ भी आप खा रहे हैं तो उसके साथ you use rice. ठीक है, most of the peoples in country use rice as a main food of their food items. ठीक है, our country जो है, हमारी country है, it's very good to know that our country is on the second positions of production of the rice. हमारी कंट्री में जैसे राइस का कंजप्शन ज्यादा है तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड, बट द चाइना इज द फर्स्ट, इज इन द फर्स्ट पोजीशन ओनली. ठीक है, अब एनी ऑफ द क्रॉप्स का सबसे स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है कि उसको कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और उसके लिए ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए और रेनफॉल कितना चाहिए, दैट इज. ठीक है, और किस किस पार्ट्स में वो ग्रो होती है. दीज ऑल आर द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस लाइक दैट. इन खरीफ क्रॉप, देखिए इट इज अ खरीफ क्रॉप, इट मींस इट हैज बीन शोन इन द मंथ ऑफ जस्ट लाइक आफ्टर जून. जून के बाद ये जनरली जो होगी वो इसको शोन का काम किया जाएगा. ठीक है, क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड द हाई टेम्परेचर, आप देखते हो जून के बाद जनरली, जैसे अभी ये मंथ है, जुलाई है, अगस्त है, इनमें टेम्परेचर जो होता है वो जनरली हाई होता है. और इसको लिए अच्छी आपकी, इफ यू वांट टू ग्रो अ गुड राइस, सो इट नीड अबव 25 डिग्री टेम्परेचर. 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड द हाई ह्यूमिडिटी, अब राइट नाउ देयर इज वेरी हाई ह्यूमिडिटी, तो ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटीज का रिक्वायरमेंट्स होता है, और जो रेनफॉल चाहिए होती है वो भी ज़्यादा होती है. तो इसको इस पर्टिकुलर पीरियड्स में ग्रो किया जाता है जिसमें ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और रेनफॉल भी ज़्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो इन द मंथ ऑफ जुलाई यू सी अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, दैट्स वाई वी गेट स्वेट्स. हम लोग को स्वेटिंग होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत होती है इन द मंथ ऑफ दैट. जुलाई और अगस्त और सितंबर के मंथ में जनरली दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन्स. ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इन दैट पर्टिकुलर टाइम यू सी द टेम्परेचर इज जनरली अबव देन 25 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो जनरली 25 से ज़्यादा होता है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज यू कैन सी एनुअल रेनफॉल भी ज़्यादा होती है क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे, वैसे तो दे आर टॉकिंग अबाउट द होलसम रेनफॉल, but generally we receive most of the rainfall on that because this time periods is generally considered as a रेनी सीजन. ठीक है, तो उस टाइम के लिए दिस इज द फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग ऑफ राइस. ठीक है, जो राइस की जो क्रॉप होती है उसको हम पैडी बोलते हैं, पैडी की जनरली क्रॉपिंग करते हैं. ठीक है, राइस इज ग्रोन जनरली कहाँ कहाँ ग्रोन होती है इंडिया में, तो देखिए इंडिया के नदर्न पार्ट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में राइस जनरल ग्रो होता है, जिसमें कोस्टल एरियाज आता है एंड द डेल्टिक रीजन्स होता है. दीज इन दैट पर्टिकुलर रीजन द राइस इज जनरली ग्रोन एंड दे आर वेरी आइडियल फॉर ग्रोइंग द राइस. ठीक है, सी दैट इट इज द मैप, आप देखेंगे इस मैप में ये जो स्पेसिफिक और जो पार्ट्स ऑफ एरियाज हैं, इन पार्ट्स ऑफ एरियाज में आप देखिए, जैसे अगर हम यहाँ से बात करते हो तो ये आपका नॉर्थ है और ये आपका बॉटम में साउथ होगा एंड दिस इज ईस्ट. देखिए हमेशा मैप में टॉप एरिया जो होता है वो नॉर्थ होता है और दिस इज वेस्ट. तो जैसे हमने डिस्कस किया था नॉर्थ पार्ट में और नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जनरली ये डिस्कस होता है. तो देखिए ये जितना भी पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस ऑल पोर्शंस आर नॉर्थ ईस्ट एरिया. तो ये जो है वो आपका मेजर एरिया है क्रॉप के लिए. बाकी ये जो पोर्शंस है जैसे पंजाब का एरिया है या जो दैट एरिया, ये जस्ट जनरली जो एरिया होता है जिसमें माइनर प्रोडक्शन होता है. इसके अलावा कुछ कोस्टल और डेल्टिक रीजन्स में भी इसकी ग्रोथ होती है. फॉर एग्जाम्पल टेकल, ये जो पोर्शन है वो आपका डेल्टिक रीजन. ठीक है, in the next video we will discuss about some different types of
crops too. Thank you very much.